Hello dear students of class 9. Today we are going to look about poem number 8, the revision section. That is what we are going to look today. This is the poem number 8. Up to now we have completed poem number 1 to 7, right? And today we are going to look about poem number 8, On Killing a Tree by Gival Patel. This is what the poem, the title is. Now, before moving ahead in the revision section of this poem number 8, let's get an introduction about the poem. The poet synthesizes the reader that highlights the fact that the trees are living things. In this poem, throughout the poet wants to talk about all the plant plantation, that is what we are going to look around us, are living things. And he equates trees with the human to convey that the trees should not be cut, because destroying trees is just like killing a human being. Dear student, in this poem, the poet wants to tell us that we should not kill the trees, we should not cut the trees, because as a human being, they have also the feelings and they may hurt also. The trees does not die by merely cutting, because it regrows from where it is cut. Apart from this, the poet also gives a kind of information that tree never dies, because the, from the place where we cut the tree, जहां से हम पेड़ को काटते हैं, वहां से पेड़ अपनी नई टहनियां निकालता है, नई कटलिंग होती है. अगर हमें इसको डिस्ट्रॉय ही करना है तो उसको हमें अपरूटेड करना पड़ेगा, यानी जल से उखाड़ना पड़ेगा, तभी वो नष्ट हो सकता है. Dear student, in the very first stanza, the poet talks about a simple cut does not destroy the tree. एक छोटा सा घाव अगर हम पेड़ को मारते हैं या लगाते हैं तो उससे पेड़ कट नहीं जाएगा. The tree grows gradually. धीरे धीरे से वो उगता है. It is rooted in the soil. वो soil के अंदर अपनी जड़ें डाल के बैठता है. A plant takes nutrition from the soil to grow into a big tree. और एक छोटा सा पौधा मिट्टी में से अपने न्यूट्रिशन निकाल के एक बड़े से पेड़ के अंदर कन्वर्ट होता है. द ट्री इज फर्मली बाउंड विद द सॉइल. वो मिट्टी से बहुत जोर से जकड़ा होता है. इट टेक्स इन सनलाइट, water and air to grow into a strong trunk and have memories left. Numbers of leaves. यहाँ पे एक जो पेड़ होता है वो बिल्कुल तने से, मतलब जड़ों से वो मिट्टी को पकड़े होता है. वहां से वो सनलाइट, पानी नीचे से लेता है, एयर लेता है और धीरे धीरे बड़ा होकर एक बड़ा सा ट्रंक बनाता है और उसी ट्रंक पे बहुत सारी पत्तियां आपको देखने को मिलती है. अब दूसरे स्टांजा के अंदर हमें वो क्या बताते हैं? The poet talks that human cut and chop the barks of the trees into the many pieces, but that it is not sufficient to destroy the tree. इसमें हमें कहना चाहता है पोएट कि भाई हम अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए हम पेड़ों की टहनियों को काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग करते हैं, उसकी बाक्स तोड़ देते हैं. लेकिन अगर पेड़ को डिस्ट्रॉय करना है, बर्बाद करना है, तो ये सफिशिएंट चीजें नहीं है. द पॉइंट ऑफ द ट्री which get cut gives out a shape just like a human being bleed. जैसे ही वो जिस आप कोई भी जगह से पेड़ को काटते हैं तो वहां से एक लिक्विड जैसा बाहर निकलता है, जैसे हम मनुष्य को काटने पर जैसे ब्लीडिंग होता है, ठीक वैसे ही. ग्रेजुअली दिस वुड हील एंड फ्रॉम देन न्यू ब्रांचेस स्टार्ट ग्रोइंग अगेन. वहां से पेड़ अपने आप को हील भी करता है और वहां से ही दूसरी नई ब्रांचेस निकालनी शुरू होती है. In stanza number 3, let's talk what the poet wants to tell. In stanza number 3, the poet wants to tell us that in order to kill the tree, if we, मतलब as a human being, if we want to kill the tree, we should uproot it. हमें उसको जल्दी से उखाड़ फेंकना पड़ेगा. One has to separate the tree from the earth which support. हमें पेड़ को अगर डिस्ट्रॉय करना है तो जिसकी जड़ें
नीचे जमीन पे इस तरह से जकड़ी हुई है, वहां से उसको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। द रूट दैट द ट्री बाइंड द ट्री विद द सॉइल इन द पिट ऑफ द अर्थ। अर्थ में एक छोटा सा गड्ढा करके उसको मूली से उखाड़ना पड़ेगा। From there, the most sensitive and hidden part of the tree, the root have to be detached। मतलब जमीन के अंदर आप गड्ढा करके उसमें से उसको अलग कर सकते हो। मिट्टी से अलग करने के बाद ही वो पेड़ अपना जीवन त्याग सकता है। कहने का मतलब ये है कि तभी वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पेड़ को मारने के लिए। And in the fourth stanza, the poet talks that once the tree has been uprooted, जैसे ही ट्री को uproot कर लिया जाएगा, then gradually it withers and dries up with the action of heat and wind। धीरे धीरे पवन और गर्मी की वजह से वो सूख जाएगा। The trunk will become a brown। धीरे धीरे उस ट्रंक का जो ग्रीन पैचेस वाला पार्ट होता है वो ब्राउन में कन्वर्ट होगा। इट स्टार्टेड ट्विस्टिंग, वो धीरे धीरे बैंड होना शुरू होगा। एंड विल गेटिंग द हार्डन, और थोड़ा सा सख्त होता जाएगा। फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे। इसी तरह से पेड़ का अंत हो सकता है। एक्चुअली इट इज एन आयरोनिकल पोएम डियर स्टूडेंट। आपको पेड़ को कैसे काटते हैं वो सिखाया नहीं गया इसमें। इसमें पेड़ काटने वक्त कितनी जद्दोजहद मेहनत लगती है वो बताया गया, और वो बोला कि अगर इतनी मेहनत हम डेवलपमेंट में करेंगे तो हम पेड़ों को भी बचा पाएंगे और अपना काम भी हो जाएगा। Let's look what are the literary devices used in this poem. Number one, enjambment is used। That enjambment का मतलब क्या होता है? When one sentence continues into two or more line। जब कोई वाक्य दो तीन लाइनों में कंटिन्यूस होता है, उसमें दो तीन लाइनों तक कहीं पर भी फुल स्टॉप न आता हो, तो वो हमारा एंजाममेंट होता है। जिसके अंदर अगर आप टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं लाइन पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज grown slowly consuming the earth rising out of it, feeding up upon its crust, absorbing yours of sunlight, air and water, and out of its leprous hide sprouting leaves। अब इसके अंदर कहीं भी आप देखोगे तो तीन चार लाइन तक कहीं पर भी फुल स्टॉप नहीं आती, वो लाइन कंटिन्यूअस रहती है। तो ये हमारा लिटरेरी डिवाइस बन जाएगा एंजाममेंट। फिर आता है मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है? दो चीजों के बीच में इनडायरेक्ट कंपैरिजन होती है। तो यहाँ पे लेपराइज हाइड जो है वो ट्रंक, ट्री का जो ट्रंक होता है उसके कलर के साथ यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। इसके अलावा ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है ह्यूमन, यहाँ पे बॉडी जैसे ब्लीड करती है वुंड लगने पर। हमारी बॉडी जब वुंड होता है, घाव लगता है, तो हम कैसे ब्लीड करती है, तो वही चीज यहाँ पे बताइए। अब बार्क को तो ब्लीडिंग नहीं होता ना, लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया गया। फिर इसमें चौथी जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज की गई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड दो से ज्यादा या दो बार रिपीट होता हो तब आप उसको एलिट्रेशन बोलते हो। तो ब्लीडिंग बार्क वाला जब आप वर्ड पढ़ोगे आपको मालूम पड़ेगा कि ब्लीडिंग का बी और बार्क का बी ये रिपीट होता है, तो एलिट्रेशन हो गया। वाइट एंड वेट, तो इसमें डब्ल्यू साउंड है जो कि कॉन्सोनेंट है, वो भी रिपीट होता है। इसके बाद जो है वो क्या है? रिपीटेशन नाम की एक लिटरेरी डिवाइस होती है। रिपीटेशन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई एक इम्पैक्ट को एम्फेसाइज करने के लिए, थोड़ा सा वेट डालने के लिए जब आप रिपीट करते हो पूरे के पूरे वर्ड को या सेंटेंस को, तब वो रिपीटेशन कहलाती है। जैसे आप आपकी पोएम देखोगे उसके अंदर आप पाओगे कि भाई पुल्ड आउट, ये जो वर्ड है वो एम्फेसाइजिंग वर्ड है और दो बार यूज हुआ है, तो ये रिपीटेशन कहलाएगा। In short, dear student, in this poem, nothing else is given, but the poet wants to tell us that stop cutting the trees. Trees are as sensitive as human. We need to do a lot of hard work if we want to kill the tree. We should not kill the trees. By the way, throughout in this poem, we have learned almost all the aspect of the poem.
what the poet wants to tell us, and I have discussed about all the literary devices that are used in the poem. I hope this will help you to understand it, and please do not forget to write these literary devices into your notebook as well as the stanza wise summary that I have revised. राइट, एक बार तो हम ऑलरेडी चला चुके हैं, ये रिवीजन का सेक्शन है, इसमें भी फिर से मैंने आपको सारे के सारे जो स्टांजा है उसकी समरी दी हुई है, वो एक्सप्लेन किए, तो आप अपनी नोटबुक के अंदर कृपया करके लिख लीजिएगा, राइट. इट is definitely going to help you in upcoming tests and exams. The poet pursued the reader not to destroy the tree and acquires it with the killing a human being. यहाँ पे पोएट ने हमें बोला है कि हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए. अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो हम एक आदमी को मारने जितना ही गुनाह करते हैं. इस तरह से उसको बैलेंस करके बताया गया है. Right? Stay home, stay safe, and keep writing and keep preparing for the examinations. Thank you.